Hello dear students, welcome back to another video of your own YouTube channel The Learning Adda. In today's video we will discuss a topic linear programming problem from the class 12. In previous video we have discussed this problem. We have discussed what is visible region, invisible point, visible points, and we have discussed some problem from NCERT exercise point 1. With the continuation of that video, we will discuss remaining problem of the same exercise in this video, and similarly we will discuss one transportation problem, one type problem, and one manufacturing problem of the second exercise from the same chapter. So let's start our video. Before starting, I would like to request you, if you are new to this channel, please hit that subscribe button and don't forget to press the bell icon, so that you may get all the updates of the channel as soon as the video is uploaded on the channel. So let's start our video. Talking about the exercise point 1, that is exercise 12.1 from NCERT, we have discussed question number 1 to 6, I suppose. In today's video we will start from question number 7 of exercise 12.1. So question number 7 is saying, show that the minimum of z occurs at more than 2 points. यहाँ पे हमको जितने भी प्रॉब्लम्स गिवन है उन सारी प्रॉब्लम से हमको ये दिखाना है कि जो z है उसकी वैल्यू मिनिमम जो है वो एक से ज्यादा पॉइंट्स पर आएगी. अब वो कैसे आएगी, चलिए उसको डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 5x प्लस 10y. इट इज गिवन दैट z इज इक्वल्स टू 5x प्लस 10y. वी नीड टू मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज दिस प्रॉब्लम. नाउ व्हिच इज सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट x plus 2y less or equals to 120, x plus y greater or equals to 60, and x minus 2y greater or equals to 0, and x and y both are greater or equals to 0. So this is our problem. We need to solve this problem. We need to find maximize and minimize z, which is 5x plus 10y here, and which is subject to constraint of these conditions. Let us solve this. First of all, we will consider this equation as x plus 2y is equals to 120. Now for this equation, at x equals to 0 we will get y is equals to 60, and at y equals to 0 we will get x equals to 120. First condition is over. Now for second condition, x plus y is equals to 60. At x equals to 60 we will get y equals to 0, and at y equals to 60 we will get x equals to 0, or you can say at x equal to 0 y equal to 60, and at y equal to 0 x equal to 60. For third condition what we have, x minus 2y is equals to 0. So here at x equals to 0 y equals to 0, and at y equals to 0 x equals to 0. It means this line will pass through the origin. Fine. Okay, now let us plot the diagram. Let us plot the graph of these conditions, these linear equations. I have plotted the axis, x-axis and y-axis. This one is x, this one is y. So first equation is 0 comma 60. We have x as 0 and y as 60. So this one is 0 comma 60. Now the second point is 120 comma 0. It will be here 120 comma 0. Now for the second condition, 0 comma 60. X is 60 when y is 0. Let us consider this 60 comma 0. Now the second point is again 0 comma 60. Same point. Now let us draw the lines. सॉरी भूल गया था, हिंदी में बोलना है. चलो भाई, हमने क्या किया, हमने ये दो इक्वेशन थी, हमारे पास तीन इक्वेशन थी. हमने इन तीनों इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन सपोज कर लिया कि भैया ये लीनियर इक्वेशन होगी, सपोज किया, और एक्सेस पे पॉइंट निकाल लिया कि ये तीनों लाइंस जो है एक दूसरे को एक्सेस पे कहाँ पे कट करेंगे. हमने पहली लाइन देखी y एक्सेस पे कहाँ कट कर रहा है, 0,60 पे, और x एक्सेस पे 120,0 पे. दूसरी लाइन देखी वो x एक्सेस पे जो कट कर रहा है दैट इज 60,0 पे, और y एक्सेस को कट कर रहा है
0,60 पे, और हमने ये लाइंस प्लॉट कर ली यहाँ पर। शेडिंग अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। ये लाइन हमने डिसाइड किया कि ये ओरिजिन से जाएगी। चलिए सर ओरिजिन से बेसिस है। देखिए यहाँ पे हम स्लोप की कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो उससे परेशान मत होइए, हमको सिर्फ शेड करना, हम शेड कर ले रहे हैं। तो हमने ये लाइन खींच ली। अच्छा ये लाइन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ये लाइन थी हमारे पास x प्लस 2y इक्वल्स टू 120, और ये वाली लाइन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। इतनी बात हम कंफर्म हो गई है। अब बचा क्या सर, आपने पिछले वीडियो में बताया था कि अब हम शेडिंग करते हैं, और कैसे शेडिंग करते हैं, 0,0 सेटिस्फाई कराते हैं इन कंडीशन पे, है ना। तो चलो सेटिस्फाई कराते हैं एट 0,0, एट 0,0। तो पहला वाला कंडीशन देखो क्या हो जाएगा, 0 इज लेस और इक्वल टू 120। अच्छा अब ये इक्वेशन कहता है 0 या तो 120 से छोटा है या तो बराबर है। इन दोनों में से हम कभी भी जब भी इस तरह का कोई कंडीशन आता है तो क्या करते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गया तो उसका मतलब वो ट्रू है। अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता है तो फिर ट्रू नहीं होगा। समझ में आ रहा है। हमने ये कहा 0 इज लेस और इक्वल टू 120, या तो 0 120 से छोटा है या फिर बराबर है। तो बराबर तो है नहीं लेकिन छोटा जरूर है, तो एक कंडीशन से सेटिस्फाई कर गई तो इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे दिस इज ट्रू। ओके नाउ फॉर सेकंड कंडीशन कहता है 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 60, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, ये फॉल्स है। अच्छा भाई थर्ड कंडीशन 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये भी ट्रू है, क्योंकि भाई 0 अगर 0 बड़ा नहीं है तो 0 0 के बराबर तो है, 0 0 के बराबर तो है, तो ये भी ट्रू हो गया। अच्छा अब क्या बताया था, अब सर आपने ये कहा था जहां पे ट्रू है वहां ओरिजिन की तरफ ले जाइए, और जहां फॉल्स है वहां ओरिजिन से दूर ले जाइए। तो चलिए पहली कंडीशन में ये ओरिजिन की तरफ आएगा, ये ओरिजिन से दूर जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। अब सर ये लाइन कहां जाएगी, ये तो खुद ही ओरिजिन पे आ रही है, तो इसकी शेड कहां जाएगी, इस साइड कि इस साइड। तो ये डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में इधर का कोई एक पॉइंट सेटिस्फाई कराते हैं, एक्स एक्सिस का या फिर वाई एक्सिस का, क्योंकि हमको क्या डिसाइड करना है कि शेडिंग इस साइड होगी कि इस साइड होगी। तो इसके एक तरफ वाई एक्सिस है और एक तरफ एक्स एक्सिस है। अगर बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, अगर हम एक्स एक्सिस का पॉइंट लेते हैं और ट्रू आता है तो एक्स एक्सिस की तरफ शेडिंग होगी, और अगर फॉल्स आता है तो वाई एक्सिस की तरफ होगी। अगर एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट लेते हैं और ट्रू आता है तो शेडिंग एक्स एक्सिस की तरफ, नहीं तो वाई एक्सिस की तरफ। और अगर वाई एक्सिस का कोई पॉइंट लेते हैं और ट्रू आता है तो शेडिंग वाई एक्सिस की तरफ, नहीं तो एक्स एक्सिस की तरफ। सिंपल। चलिए आगे देखते हैं। तो भाई हमने इसको शेड करना शुरू किया, इस वाली लाइन को इधर शेड करना शुरू किया, ये शेडिंग हो रही है, हो गई। यानी लाइन को बाहर की तरफ शेड करना शुरू किया। ठीक है सर, जैसा आप कहें, आप बोलिए तो हुक्म तो करिए, हम सब कर सकते हैं। तो भाई हमने शेड कर लिया इसको इधर की तरफ। याद रखिएगा हमको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करना है, कोई इसके नीचे मत चले जाना, क्योंकि ये कंडीशन का भी ध्यान रखना है ना। अब इसकी बारी आई, इसके लिए क्या करेंगे हम, चलिए सेटिस्फाई करा के देखते हैं। मैं ये पॉइंट उठा रहा हूँ 60,0, तो अगर 60,0 में वहां रखता हूं इस इक्वेशन में, यहाँ पे इसमें, तो आ जाएगा 60 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 विच इज ट्रू, है ना भाई। 60 तो 0 से बड़ा है तो ट्रू है। ट्रू है मतलब एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, तो इसका शेडिंग जाएगा एक्स एक्सिस की तरफ, यानी इस तरफ। तो शेड कर लेते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों तुम लोग देख सकते हो ऐसा कौन सा रीजन दिख रहा है जहां पे तीनों शेड्स हैं, है ना। तो तुमको पता है ये दिख रहा है कि सर ये देखिए, ये वाला जो रीजन है इसमें तीनों शेड आ रहे हैं। इस रीजन में तीनों शेड आ रहे हैं। इस रीजन को क्या कहेंगे हम, फीजिबल रीजन कहेंगे, फिजिबल रीजन। ये हमारा क्या आ गया, फिजिबल रीजन। अब इस फिजिबल रीजन में हमको फिजिबल पॉइंट ढूंढना है। तो सर ये रहा पहला पॉइंट 60,0, सर ये रहा दूसरा पॉइंट 120,0। इसको थोड़ा मैं बाहर लिख लेता हूँ, 120,0। अब सर ये दो पॉइंट बचे हैं, और ये तो आपने बताया था कि हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो पहले इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। तो x माइनस 2y, x प्लस 2y,
वहां से देखो सॉल्व कर लोगे ना। अगर मैं यहाँ x इक्वल टू 2y है, 2y यहाँ रख दूँ 3y हो जाएगा। जब 3y हो जाएगा तो y इक्वल टू 20 आ जाएगा, y इक्वल टू 20 x इक्वल टू 40, तो ये आ जाएगा 20, 40, 40, 20 कितना आ जाएगा यहाँ पे 40, 20 है क्या नहीं भाई। 2y रखा, 2y प्लस 3y, y की वैल्यू 20, x की वैल्यू 40। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। ये क्या है इक्वेशन, x प्लस 2y इक्वल टू 120, और फिर अब x की जगह 2y है, यहाँ पे 2y रख लेते हैं, 2y मिल गया 4y, ये हो जाएगा 30। जब ये 30 आ जाएगा यानी y की वैल्यू आ जाएगी 30, 4y और 30। ठीक है, y की वैल्यू 30 आ गई, y की वैल्यू 30 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो 30, x की वैल्यू 60, 60, 30, यहाँ पे हो जाएगा 60, 30। ये हमारे फिजिबल पॉइंट्स आ गए। यही 4 बाउंड्री कंडीशंस है, यही फिजिबल पॉइंट्स है ना। चलो आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, हमको z मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो चलो भाई z की वैल्यू रख लो यहाँ पे, z इक्वल्स टू है 5x प्लस 10y। अपने पास फिजिबल पॉइंट क्या है 60, 0, फिर है 120, 0, फिर है 40, 20 और तीसरा है 60, 30। चलो भैया रखो, सॉल्व करो। ये याद रखना, यहाँ पे ये पहला वाला x की वैल्यू है, दूसरा वाला y की वैल्यू है, इसको यहाँ पुट करके हमको इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। चलो भाई, तो ये हो जाएगा 6, 5 तो 30, 300, ये हो जाएगा 600 आएगा ना। उसके बाद ये हो जाएगा, चलो भाई 4, 5 से 20, 200, 200, 400, इसको करो 6, 5 से 30, 300 और 300, 600। तो ये पॉइंट जो है वो 2 पॉइंट में मैक्सिमाइज हो गया। ये जो प्रॉब्लम है ये हमारा 2 पॉइंट्स में मैक्सिमाइज हो गया, दैट इज 120, 0 और 60, 30। तो अब यहां से हम क्या कंक्लूजन निकलता है, हम ये कहेंगे z इज मिनिमम एट 300 एंड मैक्सिमम एट 600। या हम यहां से कहेंगे z इज मिनिमम एट 60, 0 एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज 300 and z is maximum at 120, 0 and 60, 30 and its maximum value is 600। तो अब अच्छा एक चीज और ये ध्यान रखो कि जो z है वो 120, 0 यानी इस पॉइंट पे और 60, 30 यानी इस पॉइंट पे वो कर रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है। मतलब कि इन दोनों पॉइंट पे अगर ये वैल्यू मैक्सिमाइज हो रही है तो इस लाइन में, ये जो लाइन हमारे पास आई है, इस लाइन के हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू मैक्सिमाइज होगी, ये याद रखना। ठीक है, अगर इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम हो रही है तो इसके हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये कहता है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू x प्लस 2y। z इक्वल टू क्या है, x प्लस 2y। तो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें z इक्वल टू गिवन है x प्लस 2y विच इज सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट x प्लस 2y इज ग्रेटर और इक्वल टू 100, 2x minus y is less or equal to 0 and 2x plus y is less or equal to 200, xy greater or equal to 0। भाई ये प्रॉब्लम अपने पास है, तो चलिए देखिए कैसे करते हैं इसे। ये भी उसी तरह से, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन लिख लो। पहली कंडीशन अपने पास x plus 2y equals to 100। इसके लिए at x equals to 0, y equals to 50, at y equals to 0, x equals to 100। अब भाई कोई प्लीज मुझसे ये मत पूछना कि सर आप ये पॉइंट कैसे निकाल रहे हैं, है ना भाई, बेइज्जती हो जाएगी क्या यार, है ना। बहुत आसान सा है। पहले देखो x इक्वल टू 0 रखा, तो यहाँ पॉइंट x इक्वल टू 0 रखोगे। चलो मैं एक बार रफली बता दे रहा हूँ तुम लोगों को समझने के लिए, समझ लो अच्छे से। ठीक है, जिनको नहीं आता उनके लिए, x इक्वल टू 0 रखा तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 100 हो गया, तो ये तो 2y बचा इक्वल्स टू 100 अपॉन 2 कर लो दोनों में, 2 से 2 कैंसिल, 2 50 था, तो y इक्वल टू 50 आ गया। तो ऐसे ही x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 50, और वैसे ही हम बाकी सारी वैल्यूज भी निकालते हैं, अब सारे पॉइंट पे निकालते हैं एक्सिस। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी सबको। चलो भाई सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या है। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भाई तो ये तो कुछ नहीं है, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0, है ना भाई। तो ये फिर से ओरिजिन से पास करेगा। पॉइंट नंबर 3 उठाओ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। तो एट
x इक्वल टू 0 y इक्वल्स टू 200, एट y इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 100। तो ये इतनी पॉइंट आ गए हमारे, ये कहानी समझ में आ गई। चलिए ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। अच्छा एक और बच्चा है, नहीं हो गया, सब हो गया। चलो ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। तो ग्राफ हम यहाँ थोड़ा प्लॉट करते हैं। ये एक्स एक्सिस हमने प्लॉट कर ली, ये वाई एक्सिस प्लॉट कर ली। तो भाई सबसे पहला पॉइंट कहता था 0,50, मतलब x0 y50। तो x0 y50 यहाँ कहीं होगा, है ना, 0,50। देखो मैं यहाँ पे कोई स्केल लेके नहीं चलता हूँ। अगर आप स्केल लेके चलिए तो आपका थोड़ा सिस्टमैटिक आएगा, थोड़ा अच्छा आएगा। अगर स्केल लेके चलेंगे तो ज़्यादा प्रॉपर रहेगा, लेकिन वैसे स्केल का बहुत ज़्यादा इसमें रहता नहीं है रोल। लेकिन सजेस्ट मैं यही करूँगा आपको कि आप स्केल लेके ग्राफ पेपर पे करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे जो एक्यूरेसी आएगी वो बहुत अच्छी आएगी, प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं। देन नेक्स्ट इज 100,50। 100,50 हम यहाँ ले लेते हैं भाई, 100 से बड़ा कोई पॉइंट है 200 है, तो 100,50 यहाँ ले लेते हैं। 100,50 सॉरी 100,0। नेक्स्ट पॉइंट इज, तो ये लाइन तो खींच लेते हैं इसे। ये लाइन है अपनी x + 2y = 100, x + 2y = 100। दूसरी वाली हमारी ओरिजिन से पास हो रही है, इसको ओरिजिन से भेज देते हैं। 2x - y = 0। फिर क्या कहता है, x0 पे y 200, तो यहां कहीं ले लेते हैं x0 पे y 200। उसके बाद y0 पे x 100, y0 पे x 100 तो यही है, तो ये ऐसे हो जाएगा कुछ। ये इक्वेशन है अपने पास 2x + y = 200। चलो भाई लगे हाथ हम ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको इनकी भी जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। या चलो बाद में निकालेंगे, जब पड़ेगी तब देखा जाएगा। तो भाई चलो चेक करते हैं। एट 0,0 पहला कंडीशन 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 100, जो कि सरासर गलत है, कभी नहीं हो सकता। दूसरा कंडीशन 0 इज लेस और इक्वल टू 100, सॉरी 0 इज लेस और इक्वल टू 0, तो ये ट्रू है भाई साहब। लेकिन इसमें विपदा है कि सर किधर, ऊपर के नीचे है। तो एक काम करते हैं, इसको भी यहीं सॉल्व करके देख लेते हैं ऊपर के नीचे। हम मैं इस बार जो है इसका एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, वाई एक्सिस का, है ना, या एक्सिस का लेके चलूँ। चलो एक्स का ही लेके चलो यार। तो एक्स पे पॉइंट अपने पास है 100,0, तो 100,0 में पुट करके देख रहा हूँ यहाँ पे। तो एक्स की वैल्यू 100, यानी 100 इज लेस और इक्वल टू 0। हाँ भाई, क्या 100 0 से छोटा है? नहीं सर। क्या बड़ा है? नहीं सर। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। इसका मतलब इसकी जो शेडिंग आएगी इस लाइन की, वो एक्स की तरफ नहीं होगी, वाई की तरफ होगी, क्योंकि ये फॉल्स आ गया। फॉल्स आने पे अपोजिट डायरेक्शन में करता है। तो चलो भाई, तो हमने यहां से ये देख लिया, इसकी शेडिंग इधर होगी ऊपर की तरफ, इसका भी फॉल्स है, तो इसका फॉल्स है, तो इसका भी ओरिजिन के बाहर होगा। ये कौन सी लाइन थी हमारी, x + 2y > 0, ये वाली, तो इसका भी इधर होगा। अब लास्ट वाली लाइन का देख लेते हैं भाई। थर्ड लाइन है अपने पास 0 इज लेस और इक्वल टू 200, तो ये ट्रू है। क्या है ये? ट्रू। राइटिंग थोड़ी सी गंदी, कोई दिक्कत नहीं, समझ लो, मैथ्स वालों की वैसे भी राइटिंग थोड़ी सी खराब होती है। तो भाई ये अपने आ गए, ये ट्रू है, तो ये जाएगा अपना ओरिजिन की तरफ, ये वाला। चलो भाई शेडिंग कर लेते हैं फटाफट। ये इधर आएगा, किसी को कोई समस्या हो तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर ये समस्या है। तुरंत समस्या तुरंत समाधान, गारंटी के साथ, ठीक है ना। अब भाई इसको उधर भेजना है, चलो भाई इसका भी उधर कर लेते हैं शेड। ये हो गया। अब इसका हो चुका, इसका हो चुका, इसको नीचे लेके आना है। तो ये भी शेड हो गया। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, आई थिंक यू कैन रिकग्नाइज वेयर इज द फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन दिखाई दे रहा होगा सबको? हाँ सर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये देखिए, ये आया नागिन यहाँ पे। अरे नागिन मतलब नागिन नहीं, नागिन, डोंट काउंट। लोग यार कुछ भी समझ लेते हो। चलो तो भाई ये एरिया अपना आ गया फिजिबल रीजन। ये फिजिबल रीजन आ गया। ये पॉइंट आपको अपने को पता है 0,50, ये पॉइंट अपने को पता है 0,200। ये दो पॉइंट बचे हैं, तो इनको निकाल लेते हैं भाई। ये इक्वेशन अपने पास 2x - y = 0,
यानी इस इक्वेशन से जब इंटरसेक्ट करेगा 2x प्लस वाई, तो 4x इक्वल टू x इक्वल टू 50। अब जब x इक्वल टू 50 आ जाएगा तो y इक्वल टू 100, तो ये पॉइंट आ जाएगा 50, 100। क्यों भाई, x इक्वल टू 50 तो y इक्वल टू 100। कैसे सॉल्व किया, जैसे क्लास 10th में करते थे वैसे कर लेना। फिर इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 5y, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 20, x इक्वल्स टू 20, y इक्वल्स टू 40। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा अपने पास 20, 40। क्या आ जाएगा, 20, 40 है ना भाई। तो इसकी वैल्यू खुद निकाल लेना। अब क्या करना है, बस उठाओ टेबल प्लॉट करो z की, फटाक सॉल्व कर लो। तो भाई अपने पास क्या आया है, z इक्वल्स टू x प्लस 2y था। फिजिबल पॉइंट अपने पास आए, सबसे पहले 0,50 ले लेते हैं, फिर 0,200 ले लेते हैं, फिर 50,100 ले लेते हैं, और लास्ट में 20,40 ले लेते हैं। ये पॉइंट आए थे। चलिए सर इनको सॉल्व कर लेते फटाफट। अब तो बहुत हलवा लग रहा होगा ये, है कि नहीं। x0 y50 100, x0 y200 400, x50 ये 250, x20 और ये 40 100। तो भाई अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम है और इन दो पॉइंट्स पे मिनिमम है। इसका मतलब z इक्वल टू x प्लस 2y इज मिनिमम एट 0,50 and 20,40 and its minimum value is 100 and it is maximum at 0,200। बस हो गया। अच्छा भाई ऐसा है कि अब इस एक्सरसाइज में कोई दम नहीं है, जितना केस मुझे बताना था वो कंप्लीट हो चुका है, इसके अलावा कोई नया केस इसमें नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि 9 और 10 क्वेश्चन आप खुद अपने आप करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आप कर पाए कि नहीं कर पाए। आई होप अब आप कर लेंगे बहुत इजीली, बहुत आसान सा चैप्टर था। अब हम डिस्कस करेंगे इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में कैसे यूज होता है, डाइट प्रॉब्लम में कैसे यूज होता है, और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कैसे यूज होता है। हम यहाँ पे आज की वीडियो में सिर्फ एक एग्जाम्पल करेंगे, एक एग्जाम्पल डाइट प्रॉब्लम का, एक एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम का, और एक एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, है ना। इसके बाद एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम और डाइट प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं वो डिस्कस हम करेंगे। चलिए भाई एक्सरसाइज 12.2 डिस्कस करते हैं। इसमें हमको मेनली हम जो है फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग, डाइट और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये 3 प्रॉब्लम मेनली सॉल्व करनी आ गई तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले डाइट प्रॉब्लम देखते हैं। मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ एक्सरसाइज 12.1 का। कहता है रेशमा विशेस टू mix 2 type of food P and Q in such a way that vitamin contents of the mixture contain at least 8 unit of vitamin A and 11 unit of vitamin B. Food P costs rupees 60 per kg and food Q costs rupees 80 per kg. Food P contains 3 units per kg of vitamin A and 5 unit per kg of vitamin B, while food Q contains 4 unit per kg of vitamin A and 2 unit per kg of vitamin B. Determine minimum cost of the mixture. इसको मिनिमाइज करना हमें। तो भाई क्वेश्चन देख के घबराना नहीं कि सर ये तो बहुत टफ आ गया है। टफ जैसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बस एक थोड़ा सा समझना है आपको। स्टार्टिंग में एक टेबल बनानी है और उस टेबल को बनाने के टाइम पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर उस टाइम ध्यान दे गए तो फिर कोई चीज नहीं है, हलवा प्रॉब्लम है, एकदम बकवास। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहले 6 का आता था लेकिन अब 4 नंबर में हो गया है। तो आप कर लेंगे, बहुत इजीली कर लेंगे, एकदम फ्री के नंबर है इसमें भाई। तो चलो देखते हैं। कहता है रेशमा विशेस टू मिक्स 2 टाइप ऑफ फूड्स। तो भाई अपने पास 2 तरह के फूड है ना। सबसे पहले मैं फूड पी ले रहा हूँ और फूड क्यू ले रहा हूँ। टेबल को ध्यान रखना, बस बहुत ध्यान से टेबल देखिएगा कैसे मैं टेबल बना रहा हूँ। फिर कहता है सच वे दैट vitamin contents of the mixture contain at least 8 unit of vitamin A and 11 unit of vitamin B। अब इसमें 2 तरह के विटामिन है, विटामिन A एंड विटामिन B, ठीक है ना। पहले मिक्सचर में कम से कम 8 यूनिट विटामिन A है और दूसरे में कम से कम 11 यूनिट विटामिन B है। ओके, अब P का कॉस्ट जो है वो इसका है, कॉस्ट जो है ₹60 पर केजी है और Q का कॉस्ट है ₹80 पर केजी। इतनी बात होगी। फिर क्या कहता है फूड P कंटेन्स 3 यूनिट ऑफ विटामिन A। इसमें 3 यूनिट ऑफ विटामिन A मिलता है एंड 5 यूनिट ऑफ विटामिन B, 5 यूनिट ऑफ विटामिन B।
फिर ये कहता है फूड क्यू कंटेन्स 4 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट ऑफ विटामिन बी, डिटरमाइन। तो भाई हमने क्या किया, हमने ये टेबल बना लिए, रफ टेबल बना लिए कि सर ऐसा ऐसा डेटा हमको गिवन था। क्या गिवन था? 2 तरह के फूड है, पी एंड क्यू टाइप। पी में विटामिन ए भी है, विटामिन बी भी है, क्यू में भी विटामिन ए है, विटामिन बी भी है। पी का रेट जो है वो ₹60 पर केजी है और क्यू का रेट जो है ₹80 पर केजी है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि पी के अंदर में 1 केजी अगर पी ये लेते हैं तो उसमें 3 यूनिट जो है विटामिन ए और 5 यूनिट विटामिन बी है ना, यही कहता है। अब हमें इसका एक मिक्सचर बनाना है और उसकी मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, उसका मिनिमम कॉस्ट कितना हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने मान लिया कि हम पी जो है वो x केजी ले रहे हैं। कितना केजी ले रहे हैं? x केजी। और क्यू जो है वो y केजी ले रहे हैं। तो ये 3x यूनिट हो जाएगा और ये 5x यूनिट हो जाएगा, ये 4y यूनिट हो जाएगा और ये 2y यूनिट हो जाएगा। भाई हमसे क्या कहा गया? हमसे कहा गया कि भैया आपको फूड पी और क्यू प्रिपेयर करना है। हमने कहा ठीक है भाई। फूड पी जो है 60 रुपए पर केजी होना चाहिए, हमने कहा वो भी ठीक। फूड क्यू जो है 80 रुपीज पर केजी होना चाहिए, हमने कहा जी बिल्कुल जैसा आप कहें। फिर उसने ये भी कंडीशन डाल दी कि विटामिन ए विटामिन बी दोनों कंटेन करने हैं, पी में भी क्यू में भी। पी में 3 यूनिट, 1 केजी में 3 यूनिट ए होगा और 1 केजी में 5 यूनिट बी होगा, ऐसे यहाँ पर भी। तो हमने कहा ठीक है भैया, आपने जितनी बातें कही हमने मान ली। अब हम ये कह रहे हैं कि हमने मिक्सचर बनाया तो पी जो फूड है वो x केजी बना और जो क्यू फूड है वो y केजी बना। मतलब जो टोटल फूड पी बन गया वो 68 बन गया और टोटल फूड क्यू बन गया वो 80y बन गया। इसका मतलब हमको टोटल फूड को ही तो मिनिमाइज करना है। तो टोटल फूड को मिनिमाइज करेंगे तो z ही होता है, वो ये हो जाएगा 60x प्लस 80y। पहला कंडीशन हमारा हो गया। पहला कंडीशन समझ में आया कि हमने कहा भैया टोटल फूड जो है वो पी वो x केजी मिला और क्यू जो है वो y केजी मिल गया। तो उसका जो कॉस्ट आएगा हमारे पास दैट इज 60x प्लस 80y, ये आ गया। इसको हमको मिनिमाइज करना है। अब सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट देखते हैं क्या ये कंडीशन कहती है कि 3x प्लस 4y। लाइन क्या थी उसमें क्वेश्चन में? कहता है मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए। मतलब कम से कम 8 यूनिट तो हो ही हो विटामिन ए का। तो विटामिन ए का 8 यूनिट हो सकता है कम से कम, मतलब ये कम से कम वैल्यू है। इसको अगर हम ऐड करें, विटामिन ए ऐड करें तो 8 से ज्यादा भी होगा तो चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ ग्रेटर और इक्वल टू मतलब कम से कम 8 तो हो ही हो। जैसे सपोज करो तो आपके पापा ने कहा बेटा कम से कम 60 नंबर तो ले आना। दामी सर बोले, रिक्वेस्ट किए कि बेटा 60 नंबर तो ले ही आना, नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 60 नंबर चाहिए। तो अगर तुम 80 ले आए तो डंडा लेके मारेंगे तो नहीं तुम्हें। तो इसका मतलब 80 ले आए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वही क्वेश्चन भी कहता है कि विटामिन ए जो है वो कम से कम 8 यूनिट होना चाहिए। तो हमने कहा कम से कम 8 यूनिट है, अगर उससे ज्यादा हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रेटर और इक्वल टू 8 है ना। फिर एटलीस्ट, इसके लिए भी बी के लिए भी एटलीस्ट यूज कर रहा है तो इसमें भी ग्रेटर और इक्वल टू का साइन लग जाएगा। तो कंडीशन क्या बनी हमारे पास? हमारे पास पहला कंडीशन बना 3x प्लस 4y ग्रेटर और इक्वल टू 8 एंड 5x प्लस 2y इज ग्रेटर और इक्वल टू 11। अच्छा भाई, अब क्या है, ये जो है ये कभी नेगेटिव हो सकता है। कितना क्वांटिटी ले रहा है वो नेगेटिव हो सकता है, कभी कभी नहीं हो सकता ना। तो ये कंडीशन तो अपने आप बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, x ग्रेटर एंड y ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये कंडीशन बाय डिफॉल्ट आ गई। भाई पूरी कहानी ये है, बस ये जिसको समझ में आ गया समझ लो ट्रांसपोर्टेशन डाइट सारी प्रॉब्लम को बच्चा कर सकता है। हमसे क्या कह रहा था? 2 तरह के फूड है, फूड पी फूड क्यू। क्वेश्चन जो कह रहा है पहले मैंने वो सारा लिखना है, उसके अपनी मर्जी तो हम बाद में करेंगे, अपनी मर्जी के बिना काम ही नहीं चलता भाई। क्वेश्चन ने कहा 2 फूड है पी और क्यू, हमने कहा ठीक। कहता है पी में विटामिन ए है, पी में विटामिन बी, हमने कहा ठीक। कहता है बी में भी है, हमने कहा ठीक। कहता है पी का कॉस्ट 60 रुपीज पर केजी और बी का क्यू का कॉस्ट 80 रुपीज पर केजी, हमने कहा भैया ये भी ठीक। फिर कहता है कि भैया ऐसा है कि पी में विटामिन ए जो है 1 केजी में 3 यूनिट होना चाहिए और विटामिन बी 1 केजी में 5 यूनिट होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे भी कहता है कि क्यू में विटामिन ए जो है वो 4 यूनिट होना चाहिए पर केजी और विटामिन बी जो है वो 2 यूनिट होना चाहिए पर केजी। हमने कहा ठीक भैया, तुमने जो कहा सब मान लिया हमने। अब हमने क्या माना कि हमने फूड बनाया तो पूरा फूड पी जो है वो x केजी मिल गया है। कितना आया? x केजी। तो इसका रेट 60 था, टोटल क्वांटिटी 6x केजी हो गई, तो टोटल जो अमाउंट हो गया उसका 60 इंटू x हो गया, लिख दिया। फिर इसका y मान लिया तो 80 इंटू वाई हो गया, ये भी लिख दिया। इनको जब ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगा। इसी को हमको मिनिमाइज करना है कि मिनिमाइज द अमाउंट। तो फिर क्वेश्चन कह रहा था कि
3 यूनिट ये 4 यूनिट ये मिलके एटलीस्ट 8 यूनिट तो हो उसमें। विटामिन ए जो है विटामिन ए जो है दोनों फूड्स में एटलीस्ट 8 यूनिट हो। तो हमने कहा ठीक है भाई 8 यूनिट मान ली। विटामिन बी दोनों फूड्स में एटलीस्ट 11 यूनिट हो। अब उससे ज्यादा डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतना तो हो। तो एटलीस्ट के लिए हमने क्या किया, ग्रेटर और इक्वल टू का साइन लगा लिया, ये कंडीशंस बन गए बस। अब जैसे पिछले एक्सरसाइज में कर रहे थे वैसे ही करते चलेंगे, फटाफट सॉल्व करते हैं। पहले लीनियर बनाता है, तो अपने पास ये लीनियर आ गया 3x + 4y = 8 at x = 0, y = 2 at y = 0, x = 8/3। अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं भाई। 5x + 2y = 11 at x = 0, y = 11/2 at y = 0, x = 11/5 है कि नहीं। अब ये आ चुका है एक्स वाई। चलो अब हम इसको क्या है, ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। तो भाई ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हमने एक्स एक्सिस मान ली, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये एक्स मान ली और ये वाई एक्सिस मान ली। चलो भाई प्लॉट करते हैं। 0,2, तो 0,2 यहाँ कहीं हम ले लेके चल रहे हैं, 0,2 ठीक है। फिर है 8/3,0, 8/3 यानी 3 2 = 6, 3 2 = 6 और 2 कैरी 3 6 8, ऐसे ये चलता रहेगा। 2.6 अप्रॉक्स हमने यहाँ कहीं प्लॉट कर लिया। ये हो गया 2.6, 2.6 या 8/3 लिखो यार, ज़्यादा बेटर है, लेस नहीं लेना चाहिए। ये आ गया अपने पास 3x + 4y = 8, 3x + 4y = 8। अच्छा भाई यहाँ पे आओ, x 0 तो y 11/2, 11/2 यानी 5.5 अप्रॉक्स। तो x 0 तो 5.5 यहाँ कहीं आ जाएगा, 0,5.5। फिर यहाँ ये हो जाएगा 2.2, ये 2.6 था, इससे पहले ही आएगा, तो यानी ये यहाँ कहीं आ जाएगा। थोड़ा सा रहेगा लेकिन मैं ऐसे ही दिखाने के लिए यहाँ कर ले रहा हूँ। ये हो जाएगा 2.2, 0, इसको भी बना दो। ये इक्वेशन अपनी 5x + 2y = 11। अब अपने को क्या करना है, इसको शेड करना है। शेड करने के लिए हम क्या करेंगे, 0,0 सेटिस्फाई कराएंगे। एट 0,0 फर्स्ट इक्वेशन 0 is greater or equals to 8, फॉल्स। सेकेंड कंडीशन देखो, 0 is greater or equals to 8, ये भी फॉल्स। तो इसका मतलब दोनों ओरिजिन से बाहर की तरफ, मतलब इसका शेड भी इस तरफ होगा और इस वाले का शेड भी इस तरफ होगा। भैया चलो करते हैं। तो ये शेडिंग करना शुरू कर दिया हमने। अब इसका करना शुरू करते हैं, इसकी शेडिंग ये रही। तो आप देखें आपको फिजिबल रीजन जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है यहां से। ऐसा एक बार एक क्वेश्चन और कर चुके हैं हम लोग, ये फिजिबल रीजन अपने पास आ गया। तो ये पॉइंट तो अपने को पता है 8/3,0, ये पॉइंट नहीं पता है, ये पॉइंट भी पता है। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करें, हम इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4y, ये हो जाएगा 10y, 22। चलो निकाल के देख लेते हैं। 3x + 4y = 8 है और ये हो जाएगा 10x + 4y = 22। घटा दो भाई, माइनस 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 से कैंसिल, -7x = यहाँ कितना गया 14, x = 2। अच्छा x = 2 आ गया, यहाँ रख दो, 3 2 = 6 और 10 1/2, y = 1/2। तो ये आ गया 2,1/2। अब इस पे हम क्या करेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे, जहां मिनिमम होगा वहां कंसीडर कर लेंगे। तो भाई z अपने पास था क्या, 60x + 80y। चलो भाई पॉइंट अपने पास आए हैं 8/3, 0, 2,1/2 और 0,11/2। 5.5 यानी 11/2 ठीक। चलो भैया वैल्यू निकालो फटाफट। 8/3 तो 3 2 = 6, 2 8 = 60, 160, 2 120 और हाफ 40, 160, 0 खत्म, 11/2 40 और 40। तो इसका जो कॉस्ट है वो मिनिमम आ रहा है एट 8/3, 0 एंड 2, 1/2 पे।
तो ये देखो 2,1/2 और 8/3,0 ये 2 पॉइंट है, ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं मतलब इस लाइन पे लाई करने वाले हर पॉइंट के लिए, इस लाइन पे लाई करने वाले हर पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, मतलब ये जो कॉस्ट आएगा वो मिनिमम आएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे ये मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम, मैक्सिमम को हमको करना ही है, सस्ता ही करना है। तो समझ में आया, बहुत आसान सा प्रॉब्लम था। मेन चीज जो है भाई वो यही है कि आपको टेबल बनाना समझ में आ जाए। टेबल बनाना समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो भाई अपने पास ये आ गया रिजल्ट कि यहाँ पे मैक्सिमम है और यहाँ पे मिनिमम है 2 पॉइंट्स पे, और इस हर पॉइंट पे मिनिमम होगा। तो अब हम ये कहेंगे कि जो कॉस्ट होगा वो मिनिमम कब होगा, जब रेशमा जो है क्या करेगी, P वाले को, देखो जो इक्वेशन आया x वैल्यू 2 है ना, P वाले को 2 यूनिट ले और y वाले को हाफ यूनिट ले, तब उसका जो मिक्सचर का कॉस्ट आएगा वो मिनिमम आएगा। आई होप ये क्लियर है। चलिए अब एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूं, ठीक है। कहता है अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस नट्स एंड बोल्ट। एक मैन्युफैक्चरर है जो नट और बोल्ट प्रोड्यूस करता है। तब यहाँ पर भी 2 आइटम है, एक नट और एक बोल्ट। फिर क्या कहता है, इट टेक्स 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए। अब यहाँ पे एक मशीन ए है जिसपे 1 आवर का काम होता है, एंड 3 आवर्स ऑन मशीन बी, और मशीन बी पे 3 आवर्स में काम होता है। टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट्स इट टेक्स 3 आवर ऑन मशीन ए एंड 1 आवर ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस द पैकेज ऑफ बोल्ट, ठीक है। ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹17.50 per package on nuts and ₹7 per package on bolts. How many packages of each should be produced each day so as to maximize his profit if he operates his machine for at the most 12 hours a day? मतलब वो मशीन जो है वो मैक्सिमम 12 घंटे तक ही यूज हो सकती है, उससे ज्यादा यूज नहीं हो सकती। तो हमारे पास क्या क्या चीजें पहले वो देखते हैं, उसके बाद फिर डेटा रखते हैं। अपने पास एक तो नट्स है, नट, दूसरा बोल्ट, फिर मशीन ए है, फिर मशीन 2 है। इतनी चीज अपने पास है ना, बस ठीक। फिर क्या कहता है, अब क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़ेंगे, उसको लिखते जाएंगे कैसे कैसे हम करना है ना। तो ये कहता है इट टेक 1 आवर ऑन मशीन ए एंड 3 आवर ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट। मतलब नट में 1 आवर यहाँ पे दे रहा है और 3 आवर यहाँ दे रहा है, और फिर यहाँ क्या कह रहा है, 1 आवर ऑन मशीन ए है ना, मशीन ए, 3 आवर ऑन मशीन, सॉरी 3 आवर ऑन मशीन ए एंड 1 आवर ऑन मशीन बी, 3 आवर ऑन मशीन ए एंड 1 आवर ऑन मशीन बी प्रोड्यूस पे बोल्ट, ठीक है। अब क्या कहता है, इस पे एक प्रॉफिट जो है, नट पे जो प्रॉफिट है उसको 17 रुपीज 17.50 का प्रॉफिट है, और इस पे कितने का प्रॉफिट है, 7 रुपीज का प्रॉफिट है। अच्छा ये टाइम हमने हार्स में लिखा हुआ है, ठीक है भाई। अब ये कहता है कि बताओ हाउ मेनी पैकेजेस ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस ईच डे सो एज द मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट इफ ही ऑपरेट्स, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई आपको क्या करना है, इसको बताना है कि इसको कैसे मैक्सिमाइज प्रॉफिट जो है वो इस अपना मैक्सिमाइज कर सकता है। तो चलो देखते हैं कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता है। तो हमने कहा कि भैया वो एक्स जो है नट बनाए और वाई बोल्ट बना ले, ये बोल्ट बनाए। अब वो ये कहता है कि दोनों मशीन को 12 घंटे से ज्यादा नहीं काम कर सकता है, यानी ये मैक्सिमम जो है वो आ सकता है 12 घंटे। 12 घंटे से कम भी हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने लेस और इक्वल टू लगा लिया है ना। अब हमने कहा नेट उसने एक्स बनाया तो प्रॉफिट उसका ये हो जाएगा, वाई बोल्ट बनाया तो उसका प्रॉफिट ये हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट ये आ गया। इसी को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो ये हमारा जेड हो गया। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा जल्दी किया मैंने पिछले क्वेश्चन से, क्योंकि अब आप लोग समझ चुके हैं कैसे किया। हमने कहा नट और बोल्ट 2 तरह की चीजें हमको बनानी थी, मशीन ए मशीन बी पे बनाई थी। उसने कहा ठीक, उसने कहा कि इसको 1 घंटे काम करने को मिलेगा, इसको यहाँ पे 3 घंटे, यहाँ पे इसको 3 घंटे काम करने को, इसको 1 घंटे। अब जो है मशीन 1 को 12 घंटे मैक्सिमम चला सकता है, मशीन 2 को भी 12 घंटे मैक्सिमम चला सकता है। हमने कहा ठीक है भाई, नट उसने एक्स बना लिए, बोल्ट वाई बना लिए, तो यहाँ पे 1 इंटू एक्स, एक नट में अगर 1 घंटे का टाइम लगेगा, 2 नट में 2 घंटे का, तो एक्स नट में एक्स इंटू 1 आवर। सॉल्व कर लिया, ऐसे ही इसको सॉल्व कर लिया, इसको कर लिया। अब अपने पास सब्जेक्ट क्या आ गया, सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट। तो अपने पास सबसे पहले z आया, कंडीशन क्या है, z इक्वल्स टू 17.50x प्लस 7.0y। अब
इक्वेशन देख लो क्या क्या आ जाएंगी। पहली इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 3y इज लेस और इक्वल्स टू 12 और 3x प्लस y इज लेस और इक्वल्स टू 12। अब एक चीज और, यहाँ पे प्रोडक्शन कुछ ना कुछ तो होगा, टाइम कुछ ना कुछ तो लगेगा, है ना, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन जरूर करेगा। तो ये क्या होगा, x और y हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होंगे, क्योंकि जब तक प्रोडक्शन करेगा नहीं उसको कुछ मिलेगा नहीं, प्रॉफिट आएगा नहीं। चलो भाई फटाफट फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला अपने पास सिस्टम है x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, एट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 4, एट y इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 12। सेकेंड सिस्टम में आओ। सेकेंड सिस्टम कहता है, यार नीचे ही करते हैं यार। सेकेंड सिस्टम कहता है एट ये सेकेंड सिस्टम 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। तो एट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 12, एट y इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 4। अब साथ ही साथ भाई चलो ओरिजिन ले लेते हैं, एट 0, 0। पहला क्या हो जाएगा, 0 इज लेसर इक्वल टू 12, बिल्कुल ट्रू। दूसरा क्या हो जाएगा, 0 इज लेसर इक्वल टू 12, ये भी ट्रू। तो दोनों में मतलब जो शेडिंग होगी वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगी। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है हमारी। अब भाई अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, हमने x माना, ये y माना। चलो अब क्या है, सबसे पहले x प्लस 3y इक्वल टू 12 हम प्लॉट कर रहे हैं। तो x प्लस 3y इक्वल टू x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4, तो यहाँ कहीं मान लेते हैं x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4, फिर y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 12, 0, इसको मिला देते हैं, है ना। ये इक्वेशन अपनी क्या थी, x प्लस 3y इक्वल टू 12, उसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन ये है। फिर क्या कहता है 3x प्लस y इक्वल टू 12 पे क्या है, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 12, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 12, यहाँ कहीं आएगा x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 12। दूसरा पॉइंट क्या अपने पास 4, 0, तो 4, 0 यहाँ कहीं आएगा, इसको यहाँ से मिला लेते हैं। ये इक्वेशन अपने पास क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये टुवर्ड्स द ओरिजिन आएगा, तो भैया इसकी शेडिंग भी टुवर्ड्स द ओरिजिन, इसकी भी शेडिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। चलो कर लेते हैं फटाफट बिना किसी देरी के। ये हो चुका है, अब इसको कर लेते हैं टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो भाई ये 0, 0 अपना ओरिजिन है, तो आपको फिजिबल रीजन मिल गया है। ये और ये जहां जहां नागिन जा रही है वही वही फिजिबल रीजन है भाई। तो ये फिजिबल रीजन मिल गया। फिजिबल पॉइंट की बात करते हैं तो ये 0, 0, ये 4, 0, ये 0, 4, ये पॉइंट बचा हुआ है। इंटरसेक्शन पॉइंट ये निकालना है, किसका x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 का और 3x प्लस y इक्वल्स टू 12 का। अच्छा चलो देखते हैं, एक काम करते हैं यहां से क्या, चलो करते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, सब्ट्रैक्ट करो, ये कैंसिल, ये आ गया -8x -24, 3 8 से 320, तो x इक्वल टू 3 आ गया। अब x इक्वल टू 3 यहाँ पुट कर लो, तो y इक्वल टू 3 आ गया, तो ये हो जाएगा 3, 3। इक्वेशन आ गई 3, सॉरी पॉइंट आ गया हमारा 3, 3। अब हमारे पास फिजिबल पॉइंट भी है, फिजिबल रीजन भी है। चलो वैल्यू को मिनिमाइज कर लेते हैं। तो अपने पास है z इक्वल्स टू 17.5x प्लस 7y। 0.0 कोई मतलब नहीं है, 7 हटा दिया है। तो फिजिबल पॉइंट अपने पास 0, 0 पहला, दूसरा है 4, 0 और तीसरा है 0, 4 और चौथा है 3, 3। 3, 3 आ रहा है ना। चलो ठीक है, देखा जाएगा। हाँ भाई 0, 0 पे ये 0, 4, 0, तो ये 7 0 से 0, 17.5 जा समस्या 70, और ये 0 जगह 28, 7 3 21 और 17.5 जा 35, 10 45, 45 10 52, 52, 52 और 21, 52, 53, 73। तो भाई ये आ जाएगा 73.5। तो भाई अब हम क्या कहेंगे, तो क्या करना था, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना था, मिनिमाइज करना था, तो क्वेश्चन ही भूल गया। क्वेश्चन नंबर क्या था, 4।
ओके, प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज ही करना होगा यार, प्रॉफिट को कहाँ मिनिमाइज कर देंगे, है ना। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, तो यहाँ पे मैक्सिमाइज आ रहा है, यानी कि ये हमारा मैक्सिमाइज हो गया, यानी हिज प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट 3,3 एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट इज 73.5 रुपीज। अब कहने का मतलब क्या है कि वो 3 यूनिट नट बनाए और 3 यूनिट बोल्ट बनाए एक 24 घंटे के अंदर में, तब उसको प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। चलो भाई, लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन मतलब किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमको जो खर्च है वो कम से कम रखना है। तो चलो डिस्कस करते हैं। मैं ये क्वेश्चन जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज से उठा रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है एन ऑयल कंपनी हैज 2 डिपोज। एक ऑयल कंपनी है, उसके 2 डिपो है। हमने कहा चलो भैया ठीक है, 2 डिपो है अपने पास, ए एंड बी। तो हमने कहा एक डिपो ए है और दूसरा डिपो बी है। फिर कहता है विथ कैपेसिटी 7000 लीटर एंड 4000 लीटर। इसकी कैपेसिटी है 7000 लीटर और इसकी कैपेसिटी है 4000 लीटर। देन द कंपनी इज टू सप्लाई ऑयल टू 3 पेट्रोल पंप DEF। कंपनी जो है वो DEF को पेट्रोल पंप सप्लाई करती है। तो मान लेते हैं ये D है, ये E है और ये F है। इसको कंपनी पेट्रोल प्रोवाइड करती है, ए और बी दोनों। Whose requirements are 4500 लीटर। इसका है 4500 लीटर, इसका है 3000 लीटर और इन भाई साहब का है 3500 लीटर respectively. The distance in kilometer between the depots and the petrol pump is given in the following table. टेबल में दे रखा भाई। ए से डी की जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर है। ए से डी की डिस्टेंस 7 किलोमीटर। ए से ई की डिस्टेंस 6 किलोमीटर है और ए से एफ की डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। ठीक है। फिर बी से डी की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है कितनी, 3 किलोमीटर। डिस्टेंस इन किलोमीटर है ना, 3 किलोमीटर। और ई से है इसकी डिस्टेंस 4 किलोमीटर और एफ से इसकी डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। इतनी बात क्लियर है। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग assuming that the transportation cost of 10 liters of oil is ₹1 per kilometer। मतलब 10 लीटर ऑयल का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ₹1 पर किलोमीटर है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लिख लेते हैं हम। 10 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू ₹1 पर किलोमीटर, ये गिवन है। 1 kilometer. How should the delivery be scheduled in order that the transportation cost is minimum? What is the minimum cost? मतलब हमको डिलीवरी वो कैसे करें, पेट्रोल पंप ए और बी दोनों जो है वो कैसे DEF तक पेट्रोल पहुंचाएं कि जो मिनिमम कॉस्ट है, जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो मिनिमम आए, है ना। और जो मिनिमम कॉस्ट होगा वो कितना होगा ये बताना है हमें। तो भाई शुरू करते हैं, है ना। बहुत आराम से समझिएगा, बहुत आसान सा है। कुछ चीजें मैं लिखूंगा उसको बहुत अच्छे समझिएगा, है ना। इसकी बात तो सबसे लास्ट में करेंगे, पहले देखते हैं। हमने कहा कि ए जो है वो डी को x लीटर पेट्रोल दे सकता है, y इसको y लीटर पेट्रोल दे सकता है। अब x और y दे चुका है, इसके बाद 7000 बचा तो उसको कितना दे सकता है, 7000 माइनस x प्लस y दे सकता है ना भाई। इतना ही तो दे सकता है। इसको x दे दिया, इसको y दे दिया, तो इसको 7000 माइनस x प्लस y दे सकता है। अच्छा, इसकी कैपेसिटी कितनी थी, 4500। x आ चुका है। अब ये इससे जो लेगा वो लेगा 4500 माइनस x। क्यों भाई, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। हमने कहा कि सबसे पहले इससे उठाया, आप किसी से भी उठा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। मैंने कहा ए ने डी को x दे चुका है, लेकिन इसका कैपेसिटी इसको जो जरूरत है वो 4500 की है, तो जो बचा हुआ है वो इससे लेगा, यानी 4500 में से x घटा देंगे तो इतना ही यहाँ से लेगा। इसको ये y दे चुका है तो ये कितना देगा, कितना देगा भाई, इसकी कैपेसिटी 3000 थी, y यहाँ से मिल चुका है तो ये देगा 3000 माइनस y। कितना दे देगा, 3000 माइनस y। चलो भाई अब कंडीशन बनाना शुरू करते हैं। चलो देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये x अगर जाएगा तो x ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। ये कभी ऐसा तो नहीं कि उसको भैया कुछ नहीं देगा, कुछ तो देगा ही, ऐसे y भी कुछ तो देगा ही। अब बात करते हैं इस इक्वेशन की, तो ये आएगा 4500 माइनस x ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये भी भाई 0 से बड़ा ही होगा। दूसरी चीज यहाँ से आ जाएगी 3000 माइनस y
ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये भी पॉजिटिव ही आएगा। अब क्या बचा अपने पास? अपने पास ये बचा है, यानी 7000 माइनस एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, या फिर हम कह सकते हैं इसे और x प्लस वाई इज लेस और इक्वल टू 7000। हमने क्या किया, x प्लस वाई को उधर भेजा, इधर भेजा, तो x प्लस वाई लेस और इक्वल टू 7000 आ गया। अच्छा भाई, अब अगर हम इसका वाला देखें तो ये इसको जो पेट्रोल मिलेगा वो मिलेगा 3500 माइनस जो यहां से लेना है 7000 माइनस एक्स प्लस वाई। तो भाई इसको सॉल्व करते हैं, ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस 3500 प्लस एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 0। चलो भाई इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 3500। तो अपने पास कितनी कंडीशन थी, एक ये आ गई, 2 3 4, ठीक है। तो मतलब x इज ग्रेटर देन 0, 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 कंडीशन हमने निकालनी है। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे करना है। अब वही यहां से हमारी लीनियर इक्वेशन हम ये ले रहे हैं, पहली x प्लस वाई इज इक्वल टू 7000, और फिर दूसरी ले रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3500। फिर अपने पास एक इक्वेशन ये भी है, x इक्वल टू 4500, एक इक्वेशन ये भी है, y इक्वल टू 3000। बस इसके बाद तो कुछ है नहीं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो एट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 7000, एट y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7000। फिर यही कंडीशन यहाँ पे भी लगाते हैं, एट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3500, एट y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3500। और ये तो ऐसे ही रहेंगे, है ना। अब क्या, ये ऐसे ही आ गए, ये ऐसे ही आ गए, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब ग्राफ प्लॉट कर लिया जाएगा। अच्छा पहले z निकालना है, तो z के लिए देखो भाई क्या होगा, हमको क्या क्या उसमें निकालना है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम कितना आए, और कैसे निकाल सकते हैं। तो यहां से ये x लीटर पेट्रोल से दे रहा है, डिस्टेंस 7 किलोमीटर है, तो हमको पता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो क्या था, 10 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट था। 10 लीटर पेट्रोल कैन बी ट्रांसपोर्ट बाय द रेट ऑफ ₹1 पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर 10 लीटर ले जाने का रेट था ₹1। तो 1 लीटर का निकाल लेते हैं, 1 लीटर पेट्रोल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज ₹1/10 पर किलोमीटर। मतलब अगर हम 1 लीटर पेट्रोल 1 किलोमीटर ले जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आएगा वो आएगा ₹1। यहाँ पे हमको x लीटर पेट्रोल ले जाना है 7 किलोमीटर, तो 7x ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 7x अपॉन 10। फिर यहाँ पे 6 ले जाना है y ले जाना है 6 किलोमीटर अपॉन 10, प्लस यहाँ कितना ले जाना है 7000 माइनस x प्लस वाई, ले जाना है कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक अपॉन 10, प्लस इधर आओ, यहाँ पे भी डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, 4500 माइनस एक्स अपॉन 10, प्लस यहाँ आओ, यहाँ की डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, ले जाना है 3000 माइनस वाई अपॉन 10, प्लस लास्ट वाला अपने पास क्या था, अपने पास ये कंडीशन थी x प्लस वाई माइनस 3500, तो उसको लिख लिया प्लस कितना किलोमीटर जा रहा है, 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर x प्लस वाई माइनस 3500 अपॉन 10। अब एल्शियम ले लो भाई सबका, अपॉन 10 तो आ ही गया, यहाँ आ जाएगा 7x प्लस 6y प्लस 7 3 21,000 माइनस 3 टाइम ऑफ x प्लस वाई, प्लस ये आ जाएगा 3 4 12 135,000 माइनस 3x प्लस 4 3 12 12,000 माइनस 4y। इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं तो आएगा प्लस 2 टाइम ऑफ x प्लस वाई माइनस 7000। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं इसे, ये आ जाएगा 7x, यहाँ माइनस 3x प्लस वाई, ये प्लस 2x प्लस वाई। सॉल्व होगा तो एक x प्लस वाई आएगा, वो भी नेगेटिव का, तो नेगेटिव x नेगेटिव 3x नेगेटिव 4x, तो 7x माइनस नेगेटिव 4x
कितना आ चुका है 7x और 4x माइनस करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस 6y माइनस y 5y माइनस 4y प्लस y। तो अब भाई नंबर ऐड करते हैं 21,000 देन 31,000 31,000 34,500 36,500 46,500 46,500 में से 7,000 हटा दो तो 39,500 प्लस 39,500 अपॉन 10, ये हमारा भाई z आ गया 0.3x प्लस 0.1y प्लस 3950। इसे हम मेरे को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो भाई मैं ये कंडीशन पहले यहाँ रफली लिख लेता हूँ। तो कंडीशन अपने पास आई थी x, y ग्रेटर इक्वल टू 0, 4500 माइनस x ग्रेटर इक्वल टू 0, 3000 माइनस y ग्रेटर इक्वल टू 0, देन यहाँ पे आया था x प्लस वाई लेसर इक्वल टू 7000, x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 3500। तो इतनी चीज हमारे पास आई थी। तो भाई चलो इनको प्लॉट कर लेते हैं। तो मैं एक्सेस प्लॉट करता हूँ, ये मैंने बनाई y एक्सेस और ये x एक्सेस, ठीक है। सबसे पहले मैं प्लॉट कर रहा हूँ एक्स वाई इज इक्वल टू 3500। तो जब y इक्वल टू 0 है x इक्वल टू 3500 और जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 3500। तो 0, 3500 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ सपोज कर लेते हैं 0, 3500, इसको मिला लेते हैं। तो भाई ये इक्वेशन अपनी आ गई है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3500। इसके बाद x प्लस वाई इक्वल टू 7000 है, तो हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं 0, 7000 और इसी के साथ में यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं 7000, 0, क्योंकि ये पॉइंट भी आ रहा है अपने पास, है ना। तो भाई इसको ऐसे प्लॉट कर लेते हैं। अब ये आ चुका है, ये इक्वेशन क्या है अपनी, इसको यहीं आगे लिख लेता हूँ मैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7000, ये इक्वेशन है। अब क्या है, y इक्वल टू 3000 प्लॉट करना है। तो y इक्वल टू 3000 इसके जस्ट नीचे आएगा, ये आ गया y इक्वल टू 3000, y इक्वल टू 3000। यहाँ पॉइंट आ जाएगा 0, 3000। यहाँ पॉइंट क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 3000 है, x इक्वल टू कितना है 4000। तो ये हो जाएगा 4000, 3000। फिर क्या है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी ले लेते हैं। ये कितना है, y इक्वल टू 3000 और ये हो जाएगा 500, 3000। अब क्या बच गया अपने पास, अब ये बचा है x इक्वल टू 4500। तो 4500 यहाँ कहीं होगा, ये पॉइंट होगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4500, क्योंकि भाई 4000 यहाँ आ रहा है, 4500 इधर कहीं आएगा और ये पॉइंट हो जाएगा 4500, 0। अब कोई और पॉइंट बचा, एक लाइन ये हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 3500, जो कि ये हमने प्लॉट कर ली। ये लाइन भी प्लॉट कर चुके हैं, ये रही, ये लाइन प्लॉट कर चुके हैं, ये रही, ये लाइन प्लॉट कर चुके हैं। ये तो कंडीशन है ही है, बस ठीक है भाई। अब पता करते हैं कि शेडिंग किधर होगी। तो ये देखो 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ट्रू टुवर्ड्स द ओरिजिन। 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ट्रू टुवर्ड्स द ओरिजिन। 0 is less or equal to 7000, true, तो towards the origin। and last 0 is greater or equals to 3500, false, तो away from the origin, ठीक है, या opposite to the origin। अब भाई शेड कर लेते हैं फटाफट इसमें शेड कर लेते हैं और अपना फिजिबल रीजन आ जाएगा। तो इसको शेड कर लेते हैं, ये ऐसे आ गया। ज्यादा जोश में चले गए, चलो भाई इसको शेड कर लेते हैं, ये इस तरह से आ जाएगा। इसको शेड कर लेते हैं, ये इस तरह से आएगा। उसके बाद अब क्या बच गया है, ये शेड हो गया, ये शेड हो गया, ये शेड हो गया, ये बचा शेड करना। तो ये इधर को शेड हो जाएगा।
तो भाई अपने पास फिजिबल रीजन आई थिंक आ गया है, और वो फिजिबल रीजन ये इन पॉइंट से मिलके बना हुआ है। ये एक पॉइंट, ये उसके बाद यहाँ पे कुछ आ रहा है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और एक पॉइंट ये। तो भाई ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये किसका किसका है, x प्लस वाई इक्वल टू 7000 ये लाइन है और ये है। तो ये पॉइंट हो जाएगा x 4500, तो 4500 कॉमा 2500। तो भाई अपने फिजिबल पॉइंट आ गए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये और ये, इन सब पे हम इसकी वैल्यू चेक कर लेंगे। तो भाई अपने पास फिजिबल रीजन आ गया ये वाला, कौन सा, ये जहां पे सारे जो है शेड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, वो हमारे पास फिजिबल रीजन हो गया। अब फिजिबल रीजन के जो बाउंड्री पॉइंट है वो फिजिबल पॉइंट हो गए अपने पास। फिजिबल पॉइंट आ गया ये 3500, 0, 4500, 0, 4500, 2500, 4000, 3000 एंड 500, 3000। तो फटाफट इसका z निकाल लेते हैं। अपने पास z क्या था, z इक्वल टू था 0.3x प्लस 0.1y प्लस 3950। भाई पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट अपने पास है 500, 3000, फिर है 3500, 0, फिर है 4500, 0, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। उसके बाद है 4500, 2500, और उसके बाद है 4000, 3000। ठीक है, 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकाल लेते फटाफट। चलो ऐसे सॉल्व करते हैं। 0 रखो तो 0.3 इंटू 500, तो ये आ जाएगा 5 3 15, 150 प्लस 3950 प्लस 300, तो ये आ गया 4000, 4440, 4400 है ना, ये आ गया 4000 और 100, 4300। ठीक, फिर भाई ये रखते हैं 3500, ये तो 0 हो गया, तो 3 3 9, 3 5 15 और 0 प्लस 3950, तो ये आ जाएगा कितना, 0 0 0 3 and 1 4 5, 5000। फिर भाई सेकंड पॉइंट रख लो। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट अपने पास 4500 इंटू 0, तो 45 9 45 2 90 90 और 45 3 135, तो 1350 प्लस 0 तो काम करता हूँ 3950, तो ये हो गया 4300। नहीं, 0 वाले 10 0 हासिल है 1, 9 10 3 हासिल है 1, 3 1 4 1 5 5300। उसके बाद अब ये पुट करके देखते हैं भाई 4500, तो यानी 1350 तो आना ही आना है, प्लस 2500 का हो जाएगा 250 प्लस 3950, तो भाई इसको जोड़ो 0 5 5 10 15 कैरी 1, तो 10 to 12 12 into 15 carry 1 3 1 4 1 5 5550। लास्ट वाला देखते हैं 4000 और 3000। 4000 अगर यहाँ रख रहे हैं 4 3 12 1200 प्लस 3 अगर रख रहे हैं तो 300 प्लस 3950, तो ये हो गया 1500 प्लस 3950, तो 0545, तो आ गया 5450 है ना भाई। तो ये वैल्यूज आ गई। तो भाई यहां से हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू आई है वो यहां पर मैक्सिमम है, दैट इज ये मैक्सिमम है, और मिनिमम है यहां पर। इसका मतलब 500, 3000 500, 3000 पे जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो मिनिमाइज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो इसको 500 लीटर पेट्रोल दे, इसको 3000 लीटर पेट्रोल दे, और इसको बचा हुआ जो इसके पास कैपेसिटी है, कैपेसिटी से बचा हुआ उतना पेट्रोल इसको दे, और बाकी ये जो अपनी कैपेसिटी है, वो रिक्वायरमेंट है, वो इससे फिल करे, तभी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम आएगी, जो कि 4400 है। इतनी बात समझ में आ गई।
तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमने मिनिमम कर लिया। तो भाई थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा केसेस बनाने में तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद बहुत इजीली और बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन यही सब है। एक बार बस आपने केस बना लिया, उसके बाद तो इसमें कुछ है ही नहीं, कोई दम नहीं है। तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए और प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ये क्वेश्चन अपने आप जब आप लगाएंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वीडियोस देख के या कहीं से पढ़ के आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इस वीडियो से देखिए कैसे कंडीशन बनानी है और अपने आप लगाइए, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए और आप प्रॉब्लम्स को आराम से इजिली कर पाए। तो आई होप आज का जो कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता था, जो चीज़ें आपको समझाना चाहता था, समझ में आ गया होगा। आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करिए अच्छे से और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ